सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए अभी तक टिल नाउ जो दो तरह के मोशंस हम पढ़ चुके हैं, एक तो था ट्रांसलेशनल मोशन और व्हाट वी कॉल एज रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरी तरह का मोशन हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन। अब पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पर पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक सी तरह के और मोशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन हमने किया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिसकी जरूरत मुझे इस चैप्टर में पढ़नी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, फर्स्ट लेट अस डिफाइन ब्रीफली व्हाट डू आई मीन बाय पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? पीरियोडिक मोशन इज द वन which repeats itself after a fixed time interval called time period or periodicity. Now, for example, you can say motion of Earth around Sun and about its own axis, because it repeats itself after a, इसका periodicity अर्थ अराउंड द सन 1 ईयर हो गई और अबाउट इट्स ओन एक्सिस इसकी periodicity होगी 1 डे। एक दिन में पूरा चक्कर काट लेती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक है। Next we have oscillatory motion. Oscillatory motion क्या है? It's a special kind of periodic motion. It means it will have all the properties of the periodic motion, but it is a special kind of periodic motion. इसकी स्पेशल काइंड क्या है कि इट इज ए टू एंड फ्रो मोशन। मीन्स द पार्टिकल moves between two extremities. If I take this to be x equal to 0, this is x equal to plus x, this is x equal to minus x. M I will call as mean position, E I will call as extreme position. This maximum distance from mean to extreme position is called amplitude. Maximum displacement from the mean position. So the particle goes this way, comes back, and then repeats the motion after a fixed time period. So it is a periodic motion because it has a fixed time period. But all periodic motions will not be oscillatory in nature, but all oscillatory motions will be periodic in nature. सारे के सारे जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है विच इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन।
So it is a special kind of oscillatory motion. Because oscillatory was periodic, so harmonic motion भी periodic तो होगा ही होगा. Oscillatory motion में special condition क्या है कि such motions can be described by harmonic mathematical functions. If an oscillatory motion can be described, when I say described, what does it mean? It means the equation to find its displacement from the mean position or the extreme position. Describe means I must have an equation for this kind of motion which completely describes the position at any time. Completely means whether it is towards the left or right of the mean position, whether it is starting from extreme position or mean position. So I must have a complete information about the position of the particle at a given time. So वो जो position के लिए equation derive करेंगे, it must involve some harmonic mathematical function. Now what do I mean by harmonic mathematical function? Because if the displacement of the particle, say x, is a function of time की function हो जाएगी ना, displacement must be a function of time. So this function will be called harmonic if it repeats its value after a certain time. It means then f also must be equal to t plus t, where t is the time period or periodicity. Such a function which comes back to its value after a certain time or angle, such function is called harmonic mathematical function. So if an oscillatory motion can be described with the help of some harmonic mathematical function, then that motion will be called harmonic motion. ये बड़ी बारीक से पॉइंट्स हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन. एग्जाम्पल क्या है? साइन एक्स इज ए हार्मोनिक फंक्शन. व्हाई? बिकॉज साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई. आप कहोगे कि वैल्यू तो 180 पे जाके भी 0 हो जाती है. अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज समझने की जरूरत है. मैं इसकी साइन की पीरियोडिसिटी 2 पाई ले रहा हूं, पाई नहीं ले रहा हूं. देखिए, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन साइन थीटा एंड थीटा, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कर्व. दिस इज 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, then it is 2 pi. यहां पे वैल्यू 0 है, यहां पे भी आके 0 हो गई. So shouldn't be the periodicity equal to pi, क्योंकि पाई के बाद दोबारा वैल्यू 0 हो गई. लेकिन मुझे ये भी देखना है कि दोबारा वैल्यू उसके आने के बाद फंक्शन का बिहेवियर क्या है. यहाँ पे 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पे 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी. इसका मतलब ये पॉइंट पीरियोडिक नहीं है. यहाँ पे आके वो दोबारा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा. द चेंज इन द फंक्शन आफ्टर द रेपिटेशन मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन. इसलिए मेरी जो पीरियोडिसिटी है वो 2 पाई होगी. इसी तरह जो कॉस का ग्राफ आता है वो इस तरह आता है. दिस इज कॉस थीटा वर्सेस थीटा. सो इसकी भी पीरियोडिसिटी जो आएगी वो 2 पाई आएगी. साइन एक्स, कॉस एक्स, दीज आर पीरियोडिक हार्मोनिक मैथमेटिकल फंक्शंस.
बट tan थीटा इज नॉट, tan थीटा में वैल्यू 90 पे जाके इन्फिनिटी हो जाती है, तो वो हार्मोनिक नहीं हो सकता, मेरे पास हमेशा नोन वैल्यू होनी चाहिए. सो इन्फिनिटी कैन बी एनीथिंग. सो इट मीन्स harmonic mathematical functions will be sin x and cos x. So if the equation for the position of the particle can be written in terms of these kind of functions, the motion will called harmonic motion. अब लास्ट इसमें आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. और SHM, it is a special kind of harmonic motion. देखिए, पीरियोडिक की स्पेशल काइंड थी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी की स्पेशल काइंड थी हार्मोनिक, हार्मोनिक की स्पेशल काइंड है सिंपल हार्मोनिक. सो जो काम हार्मोनिक में हो रहा था वो तो सिंपल हार्मोनिक में भी होएगा. प्लस इसमें एक कंडीशन ऐड हो गई कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम अगर x है और एक्सेलरेशन a है तो a must be proportional to minus x. It will satisfy all the properties of the harmonic motion, plus one thing more, that the acceleration of the particle at any time is proportional to minus x. Means it is proportional to the displacement, but it will always be directed opposite to the displacement. जहां से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ को होएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगा हमेशा पार्टिकल. ये बात अभी आपको शायद ना लगे, लेकिन ये धीरे धीरे समझ आ जाएगी. सो एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम का मोशन, लोडेड स्प्रिंग. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. SHM बहुत ज्यादा जगह हम ऑब्जर्व करते हैं. सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ SHM. Now let us first find the equation for such a motion. उसके लिए I will take SHM as projection of uniform circular motion. Suppose a particle is moving in uniform circular motion. The particle starts from point P. Now geometrically, graphically and otherwise I'll try to find the equation. Particle rotates in the circle like this. देखिए, particle itself is not in SHM because particle SHM में नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो ऑसिलेटरी नहीं है. अगर ऑसिलेटरी नहीं है तो SHM हो ही नहीं सकता. बट इफ आई सी द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द डायामीटर YO से Y डैश, जैसे ही पार्टिकल P यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसकी शैडो डायामीटर पे ऊपर को जाएगी. सपोज देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, इधर से लाइट आ रही है तो इसकी शैडो यहाँ पे विच आई एम कॉलिंग एज प्रोजेक्शन. सो जैसे ही P यहाँ से यहाँ पे आएगा से Q पे, इसकी शैडो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगी. ये Q से यहाँ पे आएगा, शैडो वापस आएगी.
ये यहाँ पे आएगा, शैडो नीचे आ जाएगी, वापस जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब जितने टाइम में P ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा किया, उतने टाइम में इसकी शैडो ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरी की। सो जितना टाइम पीरियड इस सर्कुलर मोशन का होगा, उतना ही टाइम पीरियड इसकी प्रोजेक्शन के ऑसिलेटरी मोशन का हो जाएगा। One oscillation is said to be completed when the particle reaches the same position in same direction. अब पार्टिकल ने यहां से ऊपर जाना शुरू किया, जब ये दोबारा मीन पोजीशन से ऊपर जाना शुरू करता है तो हम कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है। अब सपोज ये किसी टाइम t पे P से P डैश पे पहुंच गया by covering an angle. So particle goes from here to here covering an angle theta in a time t. This is the amplitude of the oscillation, which is equal to the radius of the circle. इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बाउंड्री से प्रोजेक्शन बाहर नहीं जाएगी लिमिट से। Now if I drop, इस वक्त शैडो की पोजीशन क्या है? जब पार्टिकल P से P डैश पे आ जाएगा, शैडो जो है वो O से लेके Y डैश तक ट्रेवल करेगी। सपोज ये डिस्टेंस ही ले लेते हैं कि ये जो है दिस इज Y। सो शैडो O से डिस्टेंस Y पे होगी। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। If this angle is theta, this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. So यहाँ से y की मैं सीधी वैल्यू लिख दूंगा, ये भी तो r है, this is also the radius of the circle which must be equal to r. So you will see it is equal to r sin theta. If the angular velocity of the particle is omega, which is remaining constant because it is uniform circular motion, then theta must also be equal to r sin omega t. If I draw a graph between the positions of the particle at different times, suppose I mark these times, नीचे भी इस पोजीशन पे पार्टिकल जीरो से चला, मैं पार्टिकल की पोजीशन y वर्सेस t का ग्राफ बना रहा हूं। पूरा चक्कर काटने के लिए उसको t टाइम लगता है। यहां से यहां तक वो t/4 में पहुंचेगा, 2t/4 में, 3t/4 में, 4t/4 इक्वल टू t। 2t/4 will be equal to t/2. So I'll mark these positions 0, t/4, t/2, 3t/4 and t. 0 पे वो P पर है तो y 0 है, t/4 पे वो पहुंच गया Q पर तो डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई r। इट मीन्स t/4 पे पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा आपको, मीन पोजीशन से r डिस्टेंस पे मिलेगा। 2t/4 पे वो फिर वापस आ जाएगा सेम लाइन के ऊपर t/2 पे। 3t/4 पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है तो उसकी पोजीशन ये हो गई, t पे फिर वापस आ गया। अगर आप इन सब को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट ए साइन कर्व। सो माई पोजीशन इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ साइन, तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्शन इस डायामीटर पे ना लेके मैं इस डायामीटर पे लूं, that will be x versus t. I start from 0, t/4, t/2, 3t/4 and t.
t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, t/4 पे इस लाइन पे आ गया, t/2 पे इस लाइन पे आ गया, 3t/4 पे यहां और t पे फिर वहां। अगर आप यहां वेरिएशन देखोगे तो दैट विल बी ए कोसाइन कर्व। इट मींस अगर आप इस डायमीटर पे प्रोजेक्शन ऑसिलेशंस की पोजीशन निकालनी है तो यू विल यूज द इक्वेशन y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t, और अगर यहां पे निकालनी है इस एक्सिस के ऊपर तो इट विल बी r cos ओमेगा t। सो ईदर ऑफ द टू इक्वेशंस will be the equation to find the position of the particle at a particular time, and the two are perpendicular to each other। होने भी चाहिए थे। sin ओमेगा t प्लस 90 कर दूंगा तो cos ओमेगा t बन जाएगा, सॉरी cos ओमेगा t प्लस 90 कर दूंगा तो sin बन जाएगा। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का दोनों में, क्योंकि ये डायमीटर 90 डिग्री पे थे इसलिए इनकी इक्वेशन का जो फेज है, now this part omega t is called phase of SHM। basically it determines exactly the position of particle at given time। So this is called phase of SHM। Now suppose पार्टिकल तो घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन मैंने उसको जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो यहां पे पहुंच चुका था। It means this was point P, it had already covered an angle phi with respect to this axis। Then this is known as initial phase। पार्टिकल अपनी इस पोजीशन से ऑलरेडी इतना ऊपर एंगल कवर कर चुका था, फाई को हम बोलते हैं इनिशियल फेज और इपोक। सो ये भी हो सकता है कि पार्टिकल को जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो फाई एंगल नीचे था, तो इसका मतलब अगर यहां से स्टार्ट किया है तो इस इक्वेशन में ओमेगा टी ही आएगा, मींस फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अगर हम जनरली बात करेंगे तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। वो डिपेंड करेगा फाई ऊपर है या फाई नीचे को। सो इट मीन्स द जनरल इक्वेशन to find the position of the particle at any time, r is the amplitude, t is the time at which the position is to be found, and phi is the initial phase or epoch। Now you see at time t equal to 0, इस तरफ को टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन भी 0 है। इट मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे इस पार्टिकल का मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इसका पोजीशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है। पार्टिकल इधर को आया, फिर इधर को आया, फिर इधर को, फिर इधर को। इट मींस अगर आपकी पार्टिकल की पोजीशन एट t इक्वल टू 0 इज एक्सट्रीम पोजीशन, you will use the equation r cos omega t plus minus phi। या अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो फाई अपने आप ही 0 हो गया। अगर तो आपका मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो r cos omega t स्टार्ट आपने यूज करनी है इक्वेशन।
अगर आपका मोशन एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, देन यू विल यूज द इक्वेशन r sin ओमेगा t. नाउ आई हैव फॉर्म्ड द इक्वेशन ऑफ SHM, बट जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी a प्रोपोर्शनल टू -y, लेट अस सी कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पोजीशन की इक्वेशन पता है तो एक्सेलरेशन की निकाल सकते हैं. y is equal to r sin omega t. For the sake of convenience, I take phi to be equal to 0, that the particle starts from mean position. Otherwise, उतना add या subtract होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. So, velocity of the particle at that time is rate of change of displacement or position dy by dt. So, this will be r cos omega t into omega. That is r omega cos omega t. So its acceleration, which will be equal to dv by dt, will be equal to r omega into d by dt of cos omega t. So this will be r omega minus sin omega t into omega. So this is minus r omega square sin omega t. But r sin omega t, this is y, so it is equal to minus omega square y. Omega is the angular velocity which is constant, so that means a will be proportional to minus y, which was the condition for this type of motion to be SHM. A is equal to minus omega square y, और अगर आप यहाँ पे cos भी ले लोगे तो भी इक्वेशन आपकी यही आएगी, r is equal to omega square, a is equal to minus omega square x आ जाएगी. So उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos लेने से omega square x आ जाएगा. So it means this kind of motion is SHM. Now एक चीज और है, a is equal to minus omega square x और omega square y, that doesn't make a difference. A is equal to dx by dt is equal to minus omega square x, or I can write dx by dt plus omega square x is equal to 0. This is called differential equation of SHM. This is called differential equation of SHM. असल में जो हमारे सॉल्यूशंस हैं ठीक हो गया, एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, वो dv by dt लिखना चाहिए था, d square x अपॉन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. अगर आप x इक्वल टू इसके सॉल्यूशंस निकालोगे तो यही आएंगे, इसके जो सॉल्यूशन